শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 57 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 2.57 অনওয়ার্ডস। সেই দিনের অংশী পর বোমনারায়ণ, বলুন। এই তিনের অংশী পর বোমনারায়ণ, দেহ তোমারও বিলাস তুমি মূল নারায়ণ। দেহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ। এই তিন পুরুষ অবতারের উৎস হচ্ছেন চিদাকাশে নিত্য বিরাজমান নারায়ণ, যিনি হচ্ছেন তোমার বিলাস বিগ্রহ। তাই তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ। तो नारायण के बोला হচ্ছে বিলাস विग्रह। फिर से हम लोग वापस जाते हैं। दो प्रकार का भगवान का अंश प्रकाश है, एक है प्रकाश विग्रह और एक है विलास विग्रह। ये दोनों का अंतर आप में से कौन बता पाएगा? हालांकि हम लोग ने बहुत बार चर्चा किया है। प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह का अंतर कौन बता पाएगा? विलास ग्रह में रूप की अंतर होता है। हाँ, करेक्ट। प्रकाश विग्रহের উদাহরণ কি দেওয়া হয়েছিল? রাসলীলা, এক। আর মহিষীদের সঙ্গে, দ্বারকায় মহিষীদের সঙ্গে, তো আর ব্রহ্ম বিময় লীলা আমি বলেছিলাম। তো এগুলো হচ্ছে প্রকাশ বিগ্রহের উদাহরণ, যেখানে ভগবানের এক্সপ্যানশনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই রূপে। আর এখানে কবিরাজ গোস্বামী বলছেন যে যিনি হচ্ছেন তোমার বিলাস বিগ্রহ নারায়ণ। কেন? কারণ কি নারায়ণ চতুর্ভুজ আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দ্বিভুজ। আমরা অনেক পার্থক্য, রূপের পার্থক্য গতকাল আমরা চর্চা করেছিলাম না? নারায়ণ মাথায় মোহর পাখা থাকে না, মুকুট থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশুরি থাকে, ওনার হাতে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম থাকে। নারায়ণের বুকে শ্রীবৎস, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৎস নেই, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। এগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম। আবার আমি পড়ছি এই অনুবাদটি। এই তিন পুরুষ অবতারের উৎস হচ্ছেন চিদাকাশে নিত্য বিরাজমান নারায়ণ, যিনি হচ্ছেন তোমার বিলাস বিগ্রহ। তাই তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ। অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্রহ্ম নারায়ণ, অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্রহ্ম নারায়ণ। দেহ কৃষ্ণেরও বিলাস এই তত্ত্ব বিবরণ। দেহ কৃষ্ণেরও বিলাস এই তত্ত্ব বিবরণ। সুতরাং ব্রহ্মার বিচার অনুসারে এই শ্লোকটি কে লিখেছে? কার এটা? এটা ব্রহ্মা শ্লোক। সুতরাং ব্রহ্মার বিচার অনুসারে চিদাকাশে নিত্য অধিষ্ঠিত নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। কে বলছেন এই শ্লোকটি? কে বলছেন? ব্রহ্মা, কবিরাজ গোস্বামী। ব্রহ্মা কি করে বলবে যে সুতরাং ব্রহ্মার বিচার অনুসারে? চিদাকাশে নিত্য অধিষ্ঠিত নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ। এখনই তো বললাম 57 নম্বর শ্লোকে। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, एकदम क्लियरली एस्टैब्लिश हुआ है कि भगवान का विलास विग्रह नारायण है, कृष्ण का। 59 নম্বর শ্লোক। এই শ্লোক তত্ত্ব লক্ষণ ভাগবত সার। এই শ্লোক তত্ত্ব লক্ষণ ভাগবত সার। পরিভাষা রূপে ইহার সর্বত্রাধিকার। পরিভাষা রূপে ইহার সর্বত্রাধিকার। এই শ্লোকে মানে 30 নম্বর শ্লোকের কথা বলা হয়েছে। দেখুন 30 নম্বর শ্লোকে পেছনে যান, যে শ্লোকটি ভাগবত থেকে নেওয়া হয়েছে।
হে অধীশ্বর, তুমি অখিল লোক সাক্ষী, তুমি হচ্ছে সকলের প্রিয় আত্মা, তাই তুমি কি আমার পিতা নারায়ণ নয়? হুম। তখন এই ভগবান বলছেন, ভাই আমি তোমার পিতা কি করে হয়ে গেলাম? আমি তো মাত্র একটা সাধারণ গোপ বালক। সেই 30 নম্বর শ্লোকে যেখানে ব্রহ্মা বলছে যে ভাই তুমি তো আমার পিতা, তুমি হচ্ছে মূল নারায়ণ, হ্যাঁ, তো সেই শ্লোকের বিশ্লেষণে দেখুন এখানে কি লেখা আছে। 30 নম্বর শ্লোকের বিশ্লেষণে যাক, কত নম্বরে ছিলাম আমরা এখন? 59 হ্যাঁ, পেজ উল্টাতে গিয়ে একদম। হুম। এই শ্লোকের মানে 30 নম্বর শ্লোকে যে সত্য নিরূপিত হয়েছে, সত্য নিরূপিত কি, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন মূল নারায়ণ, যেটা ব্রহ্মা বলছিল, তা শ্রীমদ ভাগবতের চূড়ান্ত বিচার। এই বিচার শাস্ত্রীয় পরিভাষা রূপে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। ওকে, অনাদির আদির গোবিন্দ উনি হচ্ছেন মূল নারায়ণ। ক্লিয়ার হলো? তো আরেকবার আমরা 30 নম্বর শ্লোকে যাই আর 30 নম্বর শ্লোকের অনুবাদটি পড়ি, কারণ কি এখানে কবিরাজ গোস্বামী বলছেন এই বিচার শাস্ত্রীয় পরিভাষা রূপে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, তো কোন বিচার ব্যবহার করা হয় ওইটা দেখতে হলে একবার 30 নম্বর শ্লোকের অনুবাদটি আমরা আরেকবার পড়ব। ব্রহ্মা বলছেন, হে অধীশ্বর, তুমি অখিল লোক সাক্ষী, হ্যাঁ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, তুমি হচ্ছে সকলের প্রিয় আত্মা, তাই তুমি আমার পিতা নারায়ণ নও? নর মানে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু, জাত জল হচ্ছে নার, তাতে যার আয়ন আশ্রয়স্থল তিনি নারায়ণ, তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণ দক্ষায় বিষ্ণু, ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু কেউই মায়ার অধীন নন, তারা সকলেই মায়াধীশ, মায়াতীত, পরম সত্য। ব্রহ্মা এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বিময় লীলার পর বলেছিলেন। তো এখানে কবিরাজ গোস্বামী বলছেন যে এই বিচার শাস্ত্রীয় পরিভাষা রূপে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। এই যে এখন তত্ত্বটি পড়লাম 30 নম্বর অনুবাদ। আগলা শ্লোক 60 নম্বর। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার, ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার, এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর। এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর। তো ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান এই সবই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, সেই সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত না হয়ে পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় ব্যক্তিরা নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে। ওকে, অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার, অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার, দেহ চতুর্ভুজ ইহ মনুষ্য আকার। দেহ চতুর্ভুজ ইহ मनुष्य आकार। क्योंकि पूरा संसार में एक गलत फहमी दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, विष्णु से आता है। भगवान कृष्ण अवतारी नहीं है, विष्णु अवतारी है ना, कृष्ण विष्णु का ही अंश है। ये सब तो इसीलिए यहाँ कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, তাদের ভ্রান্ত বিচার অনুসারে যেহেতু নারায়ণ চতুর্ভুজ সম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ সম্পন্ন সাধারণ মানুষের মতো, তাই नारायण হচ্ছেন স্বয়ং भगवान এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাদের অবতার। हरे कृष्ण, समझ में आया? तो संसार में क्या प्रचलित है, अभी नारायण का 4 हाथ है, चतुर्भुज है, तो यही भगवान है। कृष्ण दुभुज है, तो हम लोग और कृष्ण में मैचिंग है, तो ये कैसे भगवान से, तो आम आदमी है। तात्पर्य, তথাকথিত কোন কোন পণ্ডিতেরা বলে যে যেহেতু নারায়ণের 4টি হাত রয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের 2টি হাত রয়েছে, তাই নারায়ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান, যার থেকে কৃষ্ণ অবতার রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এই ধরনের নির্বোধ পণ্ডিতেরা পরম তত্ত্বের বিবিধ প্রকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ক্লিয়ার? আগলা শ্লোক 62। এই মতে নানা রূপ কর পূর্ব পক্ষ, এই মতে নানা রূপ করে পূর্ব পক্ষ, তাহারে নির্জিতে ভাগবত পদ্ম দক্ষ। তাহারে নির্জিতে ভাগবত পদ্ম দক্ষ। এইভাবে বিরুদ্ধ পক্ষ মানে অপোনেন্ট নানা রকমের তর্কের উত্থাপন করে, কিন্তু শ্রীমদ ভাগবতের শ্লোক
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাদের সেই সমস্ত তর্ককে খণ্ডন করে। ক্লিয়ার? 63 নম্বর শ্লোক। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् तत्तं जजज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। भगवानिति शब्दते। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 11 নম্বর থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনুবাদ: যা অদ্বয় জ্ঞান অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই তত্ত্ব বলেন। ওকে, সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন নামে অভিহিত হন। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শ্লোক। যা অদ্বয় জ্ঞান, অদ্বয় জ্ঞানের অর্থাৎ এক এবং अद्वितीय वास्तव वस्तु। भगवान एक ही है और भगवान के जैसा अद्वितीय मीन्स रिप्लेसेबल, सिमिलर कोई नहीं है। अद्वितीय एक एवं अर्थात एक एवं अद्वितीय वास्तव वस्तु तत्त्वज्ञ पंडितरा ताके तत्व बोले, उन्हें परमेश्वर भगवान परम तत्व बोला है। सो हु इज गॉड? God is a one who is only one person. Second, there is no second. उनके जैसा और कोई है नहीं। तो तत्वविद माने पंडित लोग उन्हीं को भगवान बोलते हैं। हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए कोई। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान है और यही निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। वो नेक्स्ट लाइन है कि यही जो अद्वैत तत्व माने ये जो भगवत तत्व है, ये अपने आप को तीन रूप में अभिहित प्रकाश कर, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। अगला श्लोक 64 नंबर। सुनो भाई ये श्लोक करो विचार। सुनो भाई এই শ্লোক করো বিচার। এই মুখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রচার। এক মুখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রচার। হে ভাই সকল, দয়া করে তোমরা এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে তার অর্থ বিচার করো। একই মুখ্য তত্ত্ব তিনটি विभिन्न रूपे ज्ञात হয়েছে। भगवान एक ही है लेकिन अपने आप को तीन रूप में प्रकाशित किया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अगला श्लोक 65 नंबर। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप। अरे अनम्यूट করে বলুন। অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান তিন তার রূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান তিন তার রূপ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব, তিনি নিজেকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিনটি রূপে প্রকাশিত করেন। তাৎপর্য: শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক, প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 11 নম্বর শ্লোকে থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি মুখ্য শব্দ ভগবান অর্থে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হচ্ছেন সেই পরম পুরুষের আনুষাঙ্গিক প্রকাশ। ঠিক যেমন রাজ্যের সরকার ও মন্ত্রিমণ্ডলী হচ্ছেন রাজার आनुषंगिक प्रकाश। तो राजा तो एक ही है, वो राजा। अभी देखिए बहुत सुंदर ये अनुवाद, ये एनालॉजी दिया हुआ है। तो राजा का जो सत्ता है और मंत्रिमंडली है, कैन वी से करुणा राधे माता जी, इट इज एज गुड एज किंग ओनली? यस, बट इट इज नॉट द किंग। পক্ষান্তরে বলা যায় পরম তত্ত্ব তিনটি বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়েছে। পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
ब्रह्म एवं परमात्मा रूपे परिचित है। जिस तरह राजा, राजा का मंत्रिमंडली और राजा का राजत्व, ये तीन रूप में, वैसे ही भगवान परमात्मा ब्रह्म ज्योति, परम तत्व परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म एवं परमात्मा रूपे परिचित। ভগবানের এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকাশ তার থেকে অভিন্ন। जिस तरह राजा का इस तरह से जो प्रकाश राजा से अभिन्न है। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ऑलरेडी ये वाला श्लोक जो अभी हम पढ़े 65 और 63 में भी वही बोल रहे हैं, 64 में भी वही बोल रहे हैं। प्रभु इतनी बार रिपीट क्यों हो रहा है ये वाला, यही श्लोक फिर 60 में भी बोला गया है, तो वो क्यों मतलब बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं कि कविराज गोस्वामी क्लियर करना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये तीन रूप में प्रकाशित हुआ है। समाज में जो ये गलत फहमियां है कि भगवान ब्रह्म ज्योति है या भगवान परमात्मा है, तो समझना पड़ेगा ये तीन ही एक्चुअली कृष्ण ही है। और ये तीनों में से अगर आप रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग करना जरूरी है कि विच इज द हाईएस्ट, एंड दैट इज कृष्ण, भगवान भगवत तत्व। सेकंड हाईएस्ट क्या है? परमात्मा। उससे नीचे क्या है उपलब्धि? ब्रह्म ज्योति उपलब्धि। यही चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। ओके प्रभु। अगला तो मतलब रीडर्स लोग उसको सीरियसली ले, मतलब बोलने का मतलब है बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब सीरियसली ले उस रीडर्स लोग कि मायावादी के चक्कर में ना फंसे। करेक्ट। कलो नास्ते व गतिरन्नथा, उसी तरह। ओके, थैंक এই শ্লোকের অর্থে তুমি হইলা নির্বচন, এই শ্লোকের অর্থে তুমি হইলা নির্বাচন, আরো এক শুনো ভাগবতেরও বচন। আরো এক শোনো ভাগবতের বচন। ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। ब्रह्मा जी बोले देखो इस श्लोक से पता चल रहा है कि स्पष्ट अर्थ তোমাকে তর্ক থেকে বিরত করছে। तो यू आर 100%, यू आर ओनली माय फादर। भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं यू आर ओनली मूल नारायण। এবার এখন শ্রীমদ भागवतेर आरो একটি श्लोक श्रवण करो। अच्छा, मैं गलत बोला, ये ब्रह्मा जी का श्लोक नहीं है, ये कविराज गोस्वामी का श्लोक है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं इस श्लोक में वही फिर से वही एस्टेब्लिश हो रहा है कि भगवान ये तीन रूप में प्रकाशित होते हैं। अभी और एक श्लोक कविराज गोस्वामी बताना चाह रहे हैं। श्लोक संख्या 65, ये सॉरी श्लोक संख्या 67, ये 67 नंबर श्लोक, ये भी श्रीमद् भागवत से लिया गया है। ये तो बहुत फेमस श्लोक है। एते चंसा कलापुंसा, एते चांस कला पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोकम, इंदारी व्याकुलं लोकम, मृदयन्ति युगे युगे। जयंती जुगे जुगे। अच्छा, ये तो कोटेशन दिया हुआ है। हाँ, तो मैंने कविराज गोस्वामी कोट कर रहा है भागवतम से, उसीलिए कोटेशन दिया हुआ है। अगर दो ठो कोटेशन दिया रहता तो क्या होता सुदामे वल्लभी माता जी, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, तो क्या होता? क्या समझ लेना पड़ता? ये किसी को कोट किया, किसी का कोट किया हुआ है। उससे यही समझ में आता है कि ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत से कोट कर रहे हैं। हाँ, जैसे अभी आगे आया था ऐसा श्लोक जहां ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं। अनुवाद: ভগবান এই সমস্ত অবতারের হচ্ছেন পুরুষ অবতারদের অংশ অথবা কলা। अभी एक बार समझना पड़ेगा कि भगवान এই সমস্ত অবতারের হচ্ছেন পুরুষ অবতারদের অংশ অথবা কলা, কিন্তু শ্রী কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। ইন্দ্রের শত্রুদের দ্বারা বিশ্ব যখন প্রপীড়িত হয় তখন ভগবান তার অংশ কলার দ্বারা যুগে যুগে বিশ্বকে রক্ষা করেন। अभी इसके लिए थोड़ा हम लोग स्लेट और पेंसिल खोलेंगे। अंश क्या होता है, कला क्या होता है, हालांकि ये 1000 बार हम लोग कर चुके हैं। अंशेर अंश के कला बोले, ये सबको मालूम है ना?
तो अंश कौन हुआ, कला कौन हुआ, वो भी देखना जरूरी है। तो एकदम ऊपर में पिंक कलर में, अच्छा ब्लैक कलर में, म्यूट कर दीजिए, एकदम ऊपर में है एसपीओजी। एसपीओजी, एसपीओजी क्या है जी? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हाँ, हिंदी में क्या बोलता है? परम सत्य। हाँ, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम करेक्ट, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है जी। अभी इनसे जो भी निकलेगा क्या होगा? कला होगा या अंश होगा? अंश होगा प्रभु। अंश, करेक्ट। भगवान से जो भी निकलेगा वो होगा अंश। तो भगवान से, भगवान का पहला विस्तार क्या है? बलराम। बलराम। हाँ, तो बलराम हो गया अंश। ठीक है जी। अभी बलराम जी से क्या निकल रहा है? चतुर्व्यूह। हाँ, करेक्ट। तो हम इसको लिख रहे हैं 1 क्यू में 1 क्यों लिखा? माने पहला क्वाड्रुपल, पहला चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह को इंग्लिश में क्वाड्रुपल बोलते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं सुविधा के लिए, पहला चतुर्व्यूह सीबी। समझ में आया सबको? समझ में आया? यस प्रभु जी। तो पहला चतुर्व्यूह में कौन कौन है? वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, VSAP। क्लियर है? प्रद्युम्न अनिरुद्ध रहता है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अच्छा, संकर्षण SAP रहता है ना, SPA नहीं रहता है। अनिरुद्ध, अच्छा, हमको जितना प्रद्युम्न फिर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। हाँ, माता जी, यहाँ प्रद्युम्न का बेटा क्या बोल रहे हैं आप? ये चारों कृष्ण है, ये चारों कृष्ण। वो तो है। हाँ, हाँ, कोई किसी का बेटा बेटी नहीं है, ये चारों कृष्ण तत्व है। ঠিক আছে? আরেকটা বলছি, সিরিয়ালে যখন দেখেছি শ্রীকৃষ্ণের অনিরুদ্ধ নাতি আর প্রদ্যুম্ন ছেলে। এখানে ওইগুলো বললে চলবে না সিরিয়ালের ব্যাপার। এখানে চারটেই কৃষ্ণ। ভগবান নিজেকে প্রকাশ করছেন চার কৃষ্ণ রূপে। তো অবতার রূপে এসেছেন। এখন ये फर्स्ट चतुर्थ, तो अभी बलराम जी हो गया, बलराम जी हो गया अंश। करेक्ट? अंश, अंश इंग्लिश में लिखता है AMSA। और बलराम जी से जो भी निकलेगा अभी हम लोग क्या बोलेंगे उन लोगों को? कला। करेक्ट? तो अंशेर अंश के कला बोला है। अभी इसके नीचे से जो भी निकलेगा सब, तो पुरुष अवतार क्या हो गया? कला। अंशेर 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 अंश, जितना भी आएगा अभी सब कला। अभी इनके नीचे अभी हम लोग को मालूम है यहां से क्या निकलता है? पहला चतुर्व्यूह से क्या निकलता है? तो वो दूसरा चतुर्व्यूह नहीं, पहला चतुर्व्यूह के संकर्षण नारायण। ये देखिए, मैं एस लिखा, एस के नीचे हम टिक लिया। पहला चतुर्व्यूह के एस माने संकर्षण से निकलता है नारायण। नारायण। तो वो दो चतुर्व्यूह निकलते हैं ना? नहीं, पहला चतुर्व्यूह के एस संकर्षण से निकलता है नारायण। अभी नारायण से निकलता है द्वितीय चतुर्व्यूह। अच्छा, ठीक है, ये कल भी हम लोग किया था। और ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह है, द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से कौन निकलता है? महाविष्णु। करेक्ट? महाविष्णु। कारण रक्षा है विष्णु। हाँ, वही। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु ये बोले संकर्षण से नारायण निकला। हाँ। अभी नारायण से चतुर्व्यूह निकलेगा। अभी जगह नहीं है इधर, कैसे करें? अच्छा, मैं बोर्ड मिटा दे रहा हूं। अभी नारायण देखा ना, नारायण निकल गया। अभी हम बोर्ड मिटा रहे।
अभी ये नारायण निकला था एन, ठीक है ना। अभी नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह निकलेगा। इंग्लिश में हम लिखेंगे 2CV, ठीक है, द्वितीय चतुर्व्यूह। अभी आइला चला गया एनीवेज, द्वितीय चतुर्व्यूह में ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, और उनमें से एक एक करके हम लोग को मालूम है तीनों में से 3 पुरुष अवतार निकलता है। तो ये बैकग्राउंड हमारा दिमाग में है। तो अंश कौन है, कला कौन है, वो समझ में आया। अंशेर अंशों के कला बोले। अभी हम लोग, हाँ बोलिए। वो यहाँ वासुदेव हर जगह आते हैं लेकिन उनसे कोई आता नहीं है, ऐसा क्या है? हाँ, उनको पूछिएगा। अभी हम लोग कहाँ थे? ये एते चमसा कला पुंसा। तो ये सब जो है ब्रह्मा जी बोला, ये एते चमसा कला पुंसा, लेकिन ये सब कला है या तो अंश है। लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये श्लोक काफी है और कुछ चाहिए नहीं एक्चुअली प्रूव करने के लिए। दिस श्लोक इज ऑल एकदम ऑल इन ऑल, पूरा क्लियर कर देता है भागवतम का ये श्लोक। फिर भी लोग तर्क करते रहते हैं। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণু বা নারায়ণের অবতার। তাৎপর্য এই মতবাদটি শ্রীমদ ভাগবতের এই শ্লোকটি স্পষ্টভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। এই শ্লোকটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী নৃসিংহ, বরাহদেব আদি সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব, কিন্তু তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের अंश अथवा कला। दोनों में से कुछ है, या तो अंश होगा या अंशेर अंश कला होगा, लेकिन भगवान कभी नहीं होगा। अगला श्लोक 68, सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ, तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करिल गणन। তার মধ্যে কৃষ্ণ চন্দ্রের করিল গণন। শ্রীমদ ভাগবতে সাধারণভাবে সমস্ত অবতারের লক্ষণ ও কার্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রকেও গণনা করা হয়েছে। हाँ, अच्युत कर्णेश प्रभु। हरे कृष्ण में पहले क्या जो तात्पर्य का अंतिम लाइन है, पहला का अर्थ क्या है? इसके पहले 67, हाँ ये अच्छा है, थैंक यू। तो इसमें श्री रामचंद्र, नृसिंह और वराहदेव, ये अंश और कला है। आप बोलिए, ये कला या अंश है? अंश तो लगता है क्या कि उनसे डायरेक्ट है, ये अंश स्वयं आए हैं, उस रूप में स्वयं आए हैं। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट कृष्ण से कभी ये सब अवतार नहीं निकलता है। कृष्ण से कभी अवतार नहीं निकलता है। अच्छा, अवतार अगर देखा जाए अभी उसमें हम क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रभु जी आप बोले थे ना? हाँ, क्षीरोदक्षाय विष्णु से अवतार निकलता है, अभी उसमें हम जाएंगे नहीं फिर। हाँ, लेकिन कृष्ण से डायरेक्ट कभी कोई अवतार निकलता नहीं। तो इसीलिए कृष्ण से ये पहले नहीं है तो कृष्ण से डायरेक्ट एक ही एक्सपेंशन है, वो है बलराम। तो बलराम जी को हम लोग अंशी बोल सकते हैं, और जितना भी बाकी है कला है, अंशेर अंश। ये तीनों क्या कहे जाएंगे प्रभु? कौन तीनों? ये तीनों कला बोला जाएगा। श्री रामचंद्र कला है एकदम। अच्छा, नृसिंह भगवान इतना बड़ा चार्ट इतना कष्ट करके ड्राइंग करके दिखाया किस लिए? फिर एक्सपेंशन बने बलराम, फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम। तो बलराम जी को क्या बोलेंगे? अंश। अंशेर अंशों के कला बोला है ना। हमने तो अभी तक यही समझा है कि जब जैसा जरूरत पड़ा है उस रूप में भगवान अपने आप को शरीर बदल करके रूप लिए है। हाँ। लेकिन तो ये तो हम लोग देखिए, हम लोग तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तब समझ में आएगा कौन क्या है। हम लोग तो बहुत कुछ आगे भी जानते थे कि लेकिन हम लोग जब डिटेल में घुसेंगे फिर और फाइन एलिमेंट जो है ना प्रभु, सूक्ष्म चीज एगलो विस्तार होगा। जितना स्टडी कीजिएगा उतना बहुत चीज निकलेगा। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज तो स्वयं कृष्ण को ही बुला रहे थे, तो उन्होंने ये खंभा फाड़ के जो रूप लिया नृसिंह का। एक सेकंड, प्रहलाद महाराज कृष्ण को नहीं बुला रहे थे, भगवान को बुला रहे थे। ऐसे whoever is सुप्रीम पर्सनालिटी आ जाएगी, तो उस समय नृसिंह रूप में आया भगवान।
तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया। प्रहलाद महाराज नारायण को बुला रहे थे, अच्छा, सॉरी कृष्ण को नहीं, नारायण को बुला रहे थे। तो जी यही है, शक्ति तो सब में समान ही है, कोई में अंतर नहीं समझना चाहिए। अभी वो भी सही भी है, गलत भी है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जो माता जी अभी बोला है, सबको अलग नहीं समझना चाहिए। अलग नहीं समझना चाहिए किसके लिए? बाहर के लोगों के लिए। जनरल पब्लिक के लिए ये सब एक ही है। हम लोग ईसा उपनिषद में तो यही बोलते हैं ना कि वन से वन। अगर हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं उसमें अगर हम कभी पूछते हैं कि भगवान रामचंद्र जी और कृष्णचंद्र में कोई अंतर नहीं है, 100% अंतर है, वो तो है। तो फिर वैसे अंतर है, लेकिन शक्ति के हम लोग हिसाब क्या से आलोचना कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अंतर है या अंतर नहीं है। डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग। कृष्ण प्रभु अंतर तो बताइए। अंतर हाँ, भगवान कृष्ण अंतर के अंश है, कला अवतार एक तो ठीक है, एक तो उसके बाद बताइए क्या अंतर है। भगवान कृष्णचंद्र का 4 गुण एक्स्ट्रा है जो कोई भी अवतार में नहीं है। मालूम है ना, लीला पुरुषोत्तम, क्या लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और गुण माधुरी, ये 4 किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। तो ये तो बड़ा चौड़ा अंतर है। भगवान कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम है, भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। बहुत अंतर है, व्यवहार में बहुत अंतर है, सब कुछ में अंतर है। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु पर इसमें देखिए आप, ये लास्ट लाइन जो 67, मेरे को भी यही समझ में आया था, मैंने सोचा था यही है, लेकिन सत्यनारायण प्रभु ने अच्छा से वो किया। कोट मत कीजिए किसी को, फिर हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है प्रभु आप जरा सा पढ़िए ना। हाँ बोलिए। This verse clearly indicates that incarnations of the personality of Godhead, such as Ram, Narsimha and Vara, all undoubtedly belong to the Vishnu group. ठीक है, but all of them are either planetary portions or portions of planetary portions. तो प्रभु बोल रहे all of them are either portions or planetary portions. तो दोनों ही अंश और कला दोनों ही तो हो सकते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं either of them, either they are कला और they are अंश। हाँ, कौन सी अंश है? और कला का डेफिनेशन क्या है? अंशर अंश। तो अंशर अंश होते ये सब, बाकी तो बस बलराम जी एक अंश में आएंगे प्रभु। बंधन और कौन आएगा? इमीडिएट एक्सपेंशन इज कृष्णा से, जो इमीडिएट एक्सपेंशन तो एक ही है, बलराम जी। और बताइए कोई एक्सपेंशन है तो प्रभु देखिए, लेकिन उसमें देखिए अभी जो ये नीचे है ना, जो अभी हम पढ़ रहे, बट ऑल ऑफ देम आर आइदर प्लानरी पोर्शंस, ये प्लूरल में दिया है प्रभु। बलराम जी एक है, तो यहाँ तो बोल सकते थे ना कि बलराम जी इज द प्लानरी पोर्शन एंड बाकी सब वो है, ऐसा बोल सकते थे ना प्रभु, पर यहाँ पे प्लूरल डाला है। माधुरी प्रिया माता देखिए, अभी पूरा क्लियर कर दे। थैंक यू, एकदम सही समय पे सही दवाई आया। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठा, अंश नियमेन तिष्ठा नहीं बोला गया। ठीक है, ठीक है। हाँ प्रभु, एक मैं पढ़ रही हूँ। ब्रह्मा जी का स्तुति में लिखा है, कला लिखा है, अंश नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोभो अवतारे ये हो गया, सॉरी। हाँ, तो इसका अनुवाद क्या था? श्रीमद् भागवते साधारण भावे, 68 का अनुवाद पढ़ रहा हूं। শ্রীমদ্ ভাগবতে সাধারণভাবে সমস্ত অবতারের লক্ষণ ও কার্যবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকেও গণনা করা হয়েছে। সো 59 नंबर श्लोक। अच्छा, ये 68 से कल से करेंगे क्योंकि इसमें अभी नया थोड़ा चेंज होगा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, বদন ভরিয়া সবে বল হরি बोल हरि बोल। चरितामृतम की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय